4 का राइट हैंड साइड में। फॉर एग्जांपल दिस इज 90 डिग्री, हमने 45 डिग्री ऐड कर दिया। वैसे नीचे -90 डिग्री था, उसको 45 में ऐड कर दिया। सो दिस बिकम्स 135, दिस बिकम्स -45। so 135 minus -45, that is 180. So these 2 points K and J, they are also out of phase. If you take some points here, say A and B, they will be out of phase. Every point corresponds to the other point, they are out of phase, and therefore each displacement will be cancelled. Upper one is cancelled by the lower one, and therefore if you are talking about string, then if it is a for example destructive interference, then the string will not move at all, it will remain steady. Okay, that is a destructive interference. आगे समझ में? Yes, sir. Now in case of light, suppose there is a light of same frequency, same wavelength, same phase, sorry, not phase, out of phase, then they will cancel each other. So even if you are shining an object with same kind of frequencies, but they have the different phase, out of phase hai, then you will see the dark spots or dark pattern. And if they are adding, obviously that will be a bright pattern. Okay. Now coming back to our this equations. Okay, this situation. Let me share the screen now. याद है ये? Yes, sir. Yes, sir. सबको याद है? Yes, sir. हाँ। और तीसरा यस किसने बोला? चलो मैंने। हाँ, आस्था, बताओ क्या है ये? सर एक लाइट है, उसकी इंटेंसिटी पता कर रहे थे सर अपन। बस। ए बी क्या है? व्हाट इज ए बी? सर ए बी एक मतलब लाइट है, किसी सोर्स से आ रही है, वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है, बीडी बीडी पे रिफ्लेक्ट होके। ओके, आदित्य सुके, रोल नंबर 2, व्हाट इज बी सी एंड सी डी? अरे क्या हुआ? अजय थूल, आगे बताओ क्या हो रहा है? BC reflected light, sir, and CD refracted light. BC is Reflected. BC is not reflected. BC is not reflected. Refracted ray. BC is refracted. Reflected. And then CD is reflected. Reflected in the same medium. Okay. Which medium we are talking? कौन सा मीडियम लिया था? Thin film. हाँ, Thin thin film. film. और thin film कितनी thin होती है? पता नहीं। 0.5. Sir, thin film can be 5,000 angstrom or 0.5. Yes, micrometer. it is of the order of. Of the order of मतलब Of the 5,000 order of. मतलब 5,000 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं. Of the It order could of be 6,000, 5,000. it could be 4,000, something like that. ठीक है? या उसके मल्टीपल में. So that is a thin film. Now the light is incident from A to B, and at point B it gets refracted along BC, whereas it is reflected along the BMF. Okay? Clear? यहाँ पे दोनों ही चीज हो रही है B पे. Yes? सर ये जो इतनी थिन फिल्म्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम 1000 एंगस्ट्रॉम्स, हाँ, सर ये कैसे सर बनती है? तो बहुत ही ज्यादा पतली होती होगी सर, ये मतलब देखेंगे ना प्रैक्टिकली कैसे करना है वो देखेंगे. अच्छा सर. सर ठीक है? सर अगर सर दूसरे सोर्स से सर दूसरा लाइट आ रहा हो, हम्म तो सर फिर वो अगर उसने अगर मतलब
एक बीम को सर क्रॉस किया, मतलब जो बीसी वाली ये है बीम, सॉरी हम्म। ये रे, उसका क्रॉस किया तो सर फिर कौन सी मतलब आएंगी सर फिर उसकी कंडीशन जो विजिबल कौन सी सेटिस्फाई होगी होगी वो लाइट आएगी। से? देखते हैं, हम पहले कंडीशन निकाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगर मान लो कि वेवलेंथ दो अलग अलग वेवलेंथ है तो क्या होगा। विल टेक द एग्जांपल, ठीक है। ओके सर। बाय दैट टाइम कीप योर क्वेश्चंस on hold. Okay. Now this light is refracted from B to C and C to D, and because it is in thin film, it will take more time. कैसे? Now this is in thin film. Thin film is a dense medium. ठीक है? Dense medium में भले ही ये distance आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन it will take more time also. Whereas in the same time the light will travel in air from B to M. ठीक है, इसकी थिकनेस जो है ये याद रखना कि दिस इज अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर, इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, नाउ what we are trying to find out is the path difference, because we know if the path difference is of the order of n lambda, then it will appear bright. If it is of the order of say odd multiple of half of lambda, okay, so odd multiple matlab you can write like 2n plus 1 and lambda by 2. So this is odd number always. Put n equal to 1, कितना आएगा? सर n इक्वल टू 1 3 आएगा सर, 3 लैम्डा 3 बाय 2। आएगा। n equal to 0, सर n इक्वल टू 0 रखने पे लैम्डा बाय 2। लैम्बडा बाय 2। yes, that is will be 1. So it is odd number 1, 3, 5, 7 and so on and so forth. So it is odd multiple of half of the wavelength. That is what the condition is, and in that case it will appear dark. ठीक है, now what is the path difference? We'll see first what is the path difference, and then we'll come back to this diagram again. Now we have this wave, and we know that the phase is something like this. Sorry, this is pi and this is 2 pi. That is 360 degree. This is 180 degree. Okay. Now you take the distance between these 2 points. What is meant by distance? Distance is always measured in terms of, yes, phi. what? नहीं समझ में आया। Sir, phi. Phi is angle. Phi is angle. सर Meter. क्वेश्चन क्या है? Distance between 2 points will be measured in which unit? Meter. Meter. रेडियन में ना? रेडियन में एंगल होता है। एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन और डिग्री। आई विल राइट और, ठीक है। Now this depends on, suppose there is a one wave, only one wave, okay. So if you take say point A and point B, then both points will be in the same phase, or it is a repetition phase 2 pi. तो तीसरा जब आएगा तो इधर जाके फिर इधर जब वापस आएगी, then it will be multiple of 2 pi. So say 2 into 2 pi, not meter. So 4 pi and then 6 pi, 8 pi and so on and so forth. ठीक है। Now if you take the distance of these 2 points A and B, अगर आप एंगल डिफरेंस लेते हैं तो then it is 2 pi. If you take the distance, what this distance is called? एक वेव के कोई भी दो सेम फेज वाले पॉइंट, you can take this one also, suppose Sir, C and D. lambda. It is a lambda, that is wavelength. Are you getting my point? Yes, sir. Now this lambda is called as a path, क्योंकि ये distance है, this is path, and the path difference for one wave will be lambda. Corresponding to this, what is the phase difference? एक वेव के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है? ये पॉइंट ए और बी के बीच में, या बी और समथिंग एल्स?
say Sir, d 2n pi. 2n pi, or you just take 1 n equal to 1, so 2 pi. So the path difference of lambda corresponds to phase difference of 2 pi. Lambda is to 2 pi. ये रेशियो रहेगा. Are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. Now, if I have some phase difference, say phi, okay, and I have a path difference of x, so what will be the value of x? Sir, repeat. If lambda corresponds to 2 pi and x corresponds to phi, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है. Yes, sir. हाँ, तो ये इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी. Lambda is to 2 pi and that is equal to x is to phi. So what you can write is x is to phi equal to lambda is to 2 2 pi. 5. And therefore x equal to the path difference will be equal to lambda upon 2 pi into Pi. Fine. Pi is Pi the is phase any difference, angle. sir. हाँ, phi is any angle. आप कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, सपोज P, ठीक है, ये हो गया आपका फेज पाई फाई. तो ये जो डिस्टेंस रहेगा पॉइंट A से, दैट विल बी x गिवन बाय दिस फॉर्मूला. आ गया समझ में? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस. Yes, sir. क्लियर? एनी डाउट? Yes, sir. और एक बार बताना है. Yes, sir. Can you repeat, sir? ठीक है. जब हम एंगल मेजर करते हैं, फेज देखते हैं. फेज का मतलब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी मार्चिंग कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि राइट फुट या लेफ्ट फुट का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन मतलब सावधान. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. Now this is suppose सावधान, so this is 0, this is mean position. Now if a person is having the right foot as, so this will be considered as positive, and if it is taking this right foot to the, this is right, like this back, then this will be negative. So this will be the SHM. Even though the person is moving forward, लेकिन उसके फुट का जो पोजीशन है मीन से, वो ऑसिलेटरी मोशन है. या हाथ का ले लो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. ठीक है. नाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो ट्रेवलिंग डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इन प्रोपोर्शन विद द फेज. अगर वो एक राइट फुट डालता है और उसके बाद लेफ्ट डालता है, तो देन वन मोशन इज कंप्लीट, वन यूनिट इज कंप्लीट. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसे ही ये है. ये सपोज दिस इज राइट फुट का वाला, ऐसे दिखाया हमने क्रेस्ट, लेफ्ट फुट वाला ट्रफ से दिखाया. नाउ इन दिस केस व्हाट आर द डिस्टेंस ही हैज ट्रैवल्ड, दैट इज अ पाथ. पाथ तो हमें पता ही है, पाथ इज वेरी कॉमन वर्ड. Yes, sir. Now in this case the path difference will be corresponding to the phase difference. So lambda one wave का जो भी distance होगा, that corresponds to 2 pi, and therefore lambda upon 2 pi will be constant. It will be same as that of unknown x. X is the unknown, छोटा सा पोर्शन हमने ले लिया. ठीक है, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे. तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो दिस इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू 5. ये फॉर्मूला हमने निकाला. क्या कोई डाउट? एनी क्वेश्चन? नहीं? ठीक है. नाउ इन दिस केस we'll come back to this diagram. In this case, what are the two paths that has been traveled by the light before it come to point D and M? Why we are talking about D and M? Because they are in
फेज और आउट ऑफ फेज, दो में से एक एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं। इसके बीच की भी कंडीशन हो सकती है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशन के लिए सॉल्व करना बहुत आसान है, तो वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब दो पाथ कौन से हो गए? BC and CD। ओके, ये दो हो गए या एक हो गए? सर BC में जाके फिर वो आगे रिफ्रैक्ट भी तो हो जाए, इमर्ज भी तो कर जा रही है ना सर। नहीं, तो उधर तो हमें लेकिन देखना वो ही नहीं है, पाथ तो हम सर वो we'll just talk about reflected wave, सर तो reflected BC side. है फिर BC फिर सर CD हो BF जाएगी and सर, ये एक BE। पाथ में। BF and BE. Okay, anybody else? So, BM and CD. BM and CD. CD. Okay, और कोई? तो BF and DE। ओके, एनी अदर आंसर? चलो, यहाँ बहुत सारे लोग वर्धा में रहते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि वर्धा से अगर नागपुर जाना है तो दो रूट आते हैं, पता है? यस सर। दूसरा कौन सा रूट है? सर मेरे गांव के तरफ से जो जाता हो। कौन से गांव की तरफ से? सर सेलू के तरफ से भी एक आता ना, एलाकेली झड़शी मार्ग, वो हाँ, वाला। वेरी गुड. Now somebody is traveling from say Nagpur to Wardha to Nagpur via Kezar, and somebody is traveling via this Selu and then क्या है वो, दो दो अच्छे गांव है, वो पूरा तो जंगल डायरेक्ट वाला हाईवे रास्ता होता है है। सर उससे। हाँ, जंगल वाला रास्ता है. सो फॉर लव एंड अदर इज द अदर पर्सन, लखनऊ में जो गए हैं, तो ये ऐसे है. ठीक है, दिस इज नागपुर हियर and this is Wardha here. Okay, so this is highway and this is थोड़ा सा कच्चा रास्ता है. ठीक है, कच्चा नहीं है, छोटा. अच्छा ही है। अच्छा ही है, कच्चा नहीं है, अच्छा है. ठीक है. अच्छा Now है this सर। is path 1 and this is part 2. Suppose the path 2 takes time like, for example, 1 hour, and path 1 takes time like 1.5 hour. So where do you get a good average सर for a पार्ट 2। bike? पाथ 1 आवर। नहीं, एवरेज बोल रहा हूँ. सर पाथ 1 होगा सर, 1 घंटा दे सर, इसलिए 1 घंटे नहीं, में तो पार्ट चल 2 जाएगा। 1 घंटा है. इससे। दिस इज हाईवे. पार्ट 2 सर हाईवे पे। दिस इज जंगल रोड. सर हाईवे, हाईवे हाईवे का अच्छे पक्का? एवरेज मिलेगा। यस अगर सर। मान लो कि ये जंगल रोड भी हाईवे जैसा होता, तो वो भी अच्छा एवरेज देता, पर ज्यादा उससे नहीं थोड़ा सर, कम तब भी देता। हाईवे सर, तब भी हाईवे अच्छा था सर। नहीं, जंगल रोड अगर मान लो कि हाईवे जैसा बना दिया हमने, तो डिस्टेंस तो ऑलमोस्ट सेम है ना. इक्वल आएगा। सर डिस्टेंस सेम कहाँ से होगा सर? आप मतलब जैसे दिखा रहे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो डिस्टेंस भी ज्यादा लगेगा सर। नहीं, ये अभी जो है, अभी डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये रास्ता खराब है अच्छा। कंपेयर टू दिस. खराब सर मतलब अगर इतना रास्ता खराब अच्छा नहीं. हो जाएगा तो टाइम भी बचेगा ना सर। एग्जैक्टली. इतना समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? Now नो सर। here in air, this is air. B to M is air. Okay. In air, it is traveling from B to M, whereas it is traveling from B to C and C to D in medium. Now the light will travel in medium with option A more than speed of light, option B less than speed of light, and option C equal to speed of light. ऑप्शन डी यूनिवर्सल. ये क्या होता है पता है आईडी के? सर कहाँ पे सर? आई डोंट नो। ये BC प्लस CD में स्पीड ऑफ लाइट विल बी सेम एज दैट सर ये ऑफ स्पीड रेयर है ऑफ कि लाइट इन डेंसर है सर? एयर.
लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। Less than. Less than speed of Less light. than. पक्का? Less than. Less than Less speed than. of. ये पता है सबको, लेस देन ही होगा, बराबर है, बिकॉज इट Yes, हैज sir. a refractive index mu and this mu is greater than 1, इसलिए तो उसका स्पीड कम हो गया। समझ में आ रहा है? नाउ देयर आर टू पाथ्स, ठीक है, ये पैरेलल है, D और M पैरेलल है। नाउ if the light is traveling from BC to CD, this is one path, and the light is traveling in air from B to M, this is another path। समझ में आ रहा है? सेम टाइम में ट्रेवल कर रहा है, सेम टाइम में, बट हियर दिस डिस्टेंस अपीयर्स टू बी बिगर। डायग्राम निकाला है उस टाइप से, इसलिए लग रहा है, अदरवाइज सेम टाइम में ट्रेवल कर रहा है। नाउ द पाथ डिफरेंस विल बी, क्या होगा पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस कैसे आता है? सर lateral displacement वो होगा क्या सर? नहीं, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप? So pi by lambda by 2 pi into phase difference. नहीं, वो तो उधर फॉर्मूला हो गया। इस केस में मान लो कि तो टोटल आपको, डिस्टेंस दोनों का मतलब इसने टोटल कितना ट्रैवल किया उसने क्या सबट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा। हाँ बस, तो व्हाट आई कैन राइट इज पाथ 1 इज BC plus CD and part 2 is BM. BM। तो इनका डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस आ गया, हो गया आपका काम, दैट इज द पार्ट डिफरेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. If this path difference is integral multiple of n lambda, then it is bright, if it is this, it is dark। कंडीशन हमें पता है, ठीक? यस नो? अरे हाँ बोलो, Yes, ना sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. दो अलग अलग पाथ है, उसके बीच का डिफरेंस अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा? इट विल बी अ पाथ डिफरेंस। नहीं समझ में आ रहा है? सर समझा। यंग डबल स्लिट ले लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है, और ये पॉइंट लिया था हमने ऐसे, ये पाथ 1 हो गया, ये पाथ 2 हो गया, इसका डिफरेंस ले लिया। इफ P1 डिफरेंस P2 जो भी है, आपने शायद ऐसा लिया होगा, ए बी और ओ, देन दिस इज OA माइनस OB, दैट इज द पाथ डिफरेंस। अगर ये n लैम्बडा है तो देन स्पॉट विल अपीयर ब्राइट, अगर नहीं, अगर दूसरी कंडीशन है तो इट विल बी अपीयर डार्क। डार्क। वैसे हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, तो राइट डाउन, तो पाथ 1 इक्वल टू BC प्लस CD, दिख रहे हैं कि नहीं आप लोग? साइड बाय साइड लिखना भी है। पार्ट 2 इज अरे पार्ट 2 क्या है? BM। Am I Yes, sir. audible? BM है part 2. BM, so BC plus CD minus BM, that is the path difference, ठीक है? So path difference will be equal to BC plus CD minus BM। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है? Yes, sir. बाकी लोग ऐसे डर के मारे बोलते हैं कि बोलते ही नहीं, पता नहीं क्या पूछ लेंगे। अरे बहुत सिंपल है, उसमें क्या है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है? ये मैंने एक ड्रॉ कर लिया और एक यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये याद रखना कि ये दोनों पैरेलल लाइंस आनी चाहिए, ठीक है?
ये क्या है वर्टिकल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं ऑप्टिक्स में? नॉर्मल। इट इज नॉर्मल, Normal. वेरी गुड। अब इसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब दिखाना है। दिखाओ जरा। अगर मैं यहाँ पे एक एंगल निकालता हूँ और इसको बोलता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सही है गलत है? सही है गलत है? यस नो? यस सर, गलत है। गलत है सर। गलत है? हाँ सर। ये एंगल गलत हो गया। तो क्या मुझे ये एंगल लेना चाहिए? यस सर। यस सर। So this is angle of incidence, okay, and this is the angle of रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। डबल वाला दिखाता हूँ रिफ्लेक्शन से, और फिर रेड कलर में दिखाते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, बड़ा कर दिया मैंने, देख। नाउ इफ दिस इज द एंगल आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? R, sir. आर। It will be again R, BCN, it will be R. Now this, suppose this is R, then this will be yes R. आर ही रहेगा। R, क्यों? रिफ्लेक्शन है वही। रिफ्लेक्शन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, इनर में। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द एंगल BDM, BDM दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ग्रीन कलर से। ये BDM कितना आएगा? Sir, R. पक्का? Yes, sir. लिख दो? लिख दो। किसी को कोई डाउट? R कैसे आ गया? No, sir. No doubt. चलो मैं बोलता हूँ R नहीं आता, आप प्रूव करके दिखाओ कैसे R आएगा। सर क्योंकि वो रिफ्लेक्शन हो रहा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी आपने ही बोला, तो वो डीएम रिफ्लेक्शन ही है ना सर, तो वो आर हो जाएगा ना। कौन सा रिफ्लेक्शन है? डीएम, बीडीएम बोल रहे ना आप, तो डीएम रिफ्लेक्शन है ना। किसका रिफ्लेक्शन है? सीडी का। नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ जरा, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ये अगर एंगल आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? मेजर ऑफ एंगल होगा पे, सर। दिस वन, दिस विल बी आल्सो आई। यस यस नो? यस। दिस विल बी आई। नाउ इफ आई से दिस इज आई, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। इफ आई से दिस इज आई, करेक्ट? यस नो? कैसे आएगा ये? आएगा कि नहीं आएगा? पहली बार वो आए, वो हाँ, अच्छा। सर वो आएगा, पर ना वो डी तक पूरा आएगा सर, वो सिर्फ ग्रीन लाइन तक नहीं आएगा। डी तक एंगल तो तीन तीन पॉइंट से आएगा ना, BDM, ये BDM, ये जो मैंने दिखाया, ये पूरा ग्रीन कर देता हूँ इसको। दिस इज द एंगल। सर बीडीई एंगल आई होगा सर। BDE, हाँ वो आई होगा। ओके। चलो एक एक आंसर आया कि BDE विल बी, एंगल BDE विल बी आई। और कोई? डू यू वांट टू सपोर्ट मी और आस्था? ये याद रखना, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हो सकता है वो सही हो सकता है गलत हो।
चलो एक एक करके पूछते हैं। साक्षी 22। साक्षी राकुंडे। Yes, sir. हाँ, व्हाट इज योर ओपिनियन? सही है गलत है? Sir, I go with Asta. Okay. Asta says this angle is I. BD. Okay. Let me take Bhavesh 40. Yes, sir. So what do you think? The green one सर is एक बार क्वेश्चन correct? रिपीट कर दीजिए सर। क्वेश्चन ये है कि एंगल बी डी एम, मैं कहता हूं कि ये I है। हाँ सर। आस्था इज सेइंग बी डी ई विल बी I। ठीक है, कौन सा अच्छा सही सर। है? या आपका कहना तीसरा ही कुछ है? सर ये I नहीं बताइए। होना चाहिए, R होना चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, नथिंग। सर आपका सही है, आई होगा वो। सर इसलिए होगा सर, ओके। जैसे हमें पता है कि आर आपने नॉर्मल बनाया है, नॉर्मल और वो जो थिन है मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। ये आपने रिफ्लेक्शन और मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो सर हम उसको आई ले सकते हैं, आपने जैसा आई लिखा हुआ है ग्रीन कलर से। हम्म। सर तो जब वो आई है तो 90 के अलावा सर एक एंगल बचा हुआ 90 माइनस आई होगा, हम्म, और वो आई होगा सर। बिल्कुल सही। हरिता समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया बताओ? सर मुझे नहीं समझा। हाँ, नहीं बोल देना सीधा, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखो, ये आय हो गया, कैसे हो गया बताओ? क्यों हुआ? सर ये वाला, ये रेड से लिखा है ना मैंने अभी, हाँ ग्रीन कलर से लिखा है, ये यहाँ पे नाम दे देते हैं। सर, वो आई इसलिए हुआ क्योंकि जो ए बी है वो भी ए बी और बी एफ इक्वल है सर। रिफ्लेक्शन हो रहा ना, ए बी बी एफ का रिफ्लेक्शन है। ए बी क्यू एंगल आई है, क्यू बी एफ भी एंगल आई है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज सेम। ठीक है। यस सर। Now, if this is I, then what will be this? MBD. MBD दिखा? ये कितना आएगा? 90 माइनस आए। हरिता? नाइनटी माइनस आए। पक्का? सर ये भी आई। ना ना 90 माइनस आई ये सर। 90 है ना पूरा? 90 माइनस आए। ये देखो, ये पूरा I है, सॉरी 90 है। ठीक है, ये इसमें से I चला गया, तो ये बचा कितना? ये छोटा 90 माइनस I, और ये एंगल है 90 डिग्री, ये 90 माइनस I है, तो बचा कौन? ये कितना हो जाएगा? I। ठीक है। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं बार बार इसलिए नो पूछ सर। रहा हूँ कि इसके बाद मैं आपको सीधा बोलने वाला हूँ कि आप निकालो वैल्यू ऑफ BC और CD और BM की, वो मैं सवाल नहीं करने वाला हूँ। सर फिर वो एंगल जो आपने ग्रीन से आई लिखा हाँ। सर, वो आर क्यों नहीं हो सकता? R नहीं होगा, वो R का कनेक्शन कहाँ तक है ये बताओ। ये हो गया आपका, सपोज ये R है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस R। ठीक है, इसका और इसका एंगल जो है ना वो 90 डिग्री नहीं है टोटल। हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस लगेगा ना, बिना रेफरेंस के कैसे यस लेकर? ये 90 है, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है, ये R हो गया, ये 90 माइनस R हो गया। तो इस एंगल, इस आकृति में हम कहीं पे भी 90 डिग्री नहीं ले रहे, हमें पता ही नहीं, एक ही 90 का है, बाकी पता ही नहीं है ये कितना है, पता नहीं ये कितना है, पता नहीं, ये 2R हो जाएगा, ये 90 माइनस R प्लस समथिंग हो जाएगा, तो ये पता ही नहीं। सर एक और डाउट, आपने तो अपने मन से आई लिखा ना सर वहां पे, और वो उसके जो आपने 90 माइनस आई लिखा वो आई नहीं हो सकता क्या फिर? कैसे होगा?
ये देखो, ये जो क्यू बी डी दिख रहा है क्या, क्यू बी डी, ये ऊपर क्यू, ये बी और ये डी, ये कितना हो जाएगा? 90। 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 में से मैंने ये आई निकाल दिया इधर का, ये इधर का जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ मैं अभी, हाँ यस पूरा निकाल दिया। बचा यस कितना फिर? 90। 90 माइनस आई, ये एंगल जो है एफ बी डी या एम बी डी, ये हो जाएगा 90 माइनस आई। यस अब ये सर 90 माइनस आई है, ये 90 है। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 degree. 180 डिग्री। 180 डिग्री, उससे हमने निकाल लिया, ये आई हो जाएगा। जहां तक समझ में आया, बार बार मैं पूछ रहा हूँ, यस नहीं सर। सर समझ में आया तो पूछ लो। सर नहीं तो सर, फिर समझ गया। बीडी कितना होगा? बी डी ई, ई। हाँ हाँ ये 90 प्लस हो जाएगा, दिस इज 90 डिग्री, ओ यस ये 90 प्लस आई हो जाएगा। यस सर अभी समझ गया। ठीक है, हाँ क्लियर? यस चलो, Yes, sir. अभी आपको निकालना है BC प्लस CD की वैल्यू। BC की वैल्यू निकालो, उतनी ही CD की आएगी। So how will you calculate the value of BC? Now we know, or we can take the suppose the thickness of this thin film as T. So B से लेकर suppose CN वैल्यू, BX वैल्यू, BX CN, ये दोनों ही वैल्यू T है। ठीक, अब आप मुझे बताओ कि BC की वैल्यू कितनी आएगी। ट्रायंगल सर टी यूज करो कॉस कोई थीटा, भी। टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा, थीटा तो नहीं है डायग्राम में। सर टी कॉस आर। पक्का? यस सर। चलो, लव ने बोल दिया है कि टी कॉस कॉस आर आएगा BC। कैलकुलेट करो जरा। सर निकालना क्या है? BC सर BC टी सर CX की वैल्यू भी T है क्या? CX की वैल्यू T नहीं है, BX की, BX, ये वर्टिकल CN, BX और CN की वैल्यू आपको दी है। BX इज T and CN और NC is also T। तो आपको सर BC की यही वैल्यू सेम निकाल, चीज सर इसमें आ जाएगी। सर बीसी की और सीडी की लेंथ वही टी कॉस आर हो जाएगी सर। कैलकुलेट करके देखो। समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी लोग, बाकी है कि नहीं क्लास में? यस सर। बताओ पराग सुपे। सर जिसका मुझे नाम नहीं लिख, समझ। हाँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट चाहिए भाई। सर बीसीडी इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या सर? नहीं, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सॉरी, BCD, yes yes, it is equilateral, it is equilateral, this side will be same as that of this। लेकिन BCD का कोई लेना देना नहीं हमें। we'll talk about only this one, BCN। you take either BCN or you take a DCN, any one। तो ट्रायंगल सर BCN दिख गया। ट्रायंगल सर BCN में एंगल को मत बोलो। कर। एनी डाउट? सर मैं रॉन्ग हूँ सर, क्या सर मैं सही हूँ या गलत सर? सर इसने ऐसे देखते हैं डायरेक्ट ना कैसे बता अभी। दिया सर कि टी कॉस आर होगा सर? इसने ऐसे अरे डायरेक्ट कोई भी कैसे कुछ भी बता लिख सकता है, उसमें क्या है? मैंने लिख दिया आंसर, ये लव का आंसर है। सही है गलत है ये थोड़ी ना बोला मैंने। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, चलो BCN में मुझे बताओ कि साइन आर क्या होता है। सर बीसीएन में साइन आर सर। हाँ, अभी लो, शांत हो जाओ, तुम्हारा आंसर आ गया, अभी दूसरों को सर चांस देते अपोजिट हैं। अपॉन हाइपोटेनियस हाँ, होता तो है। अपोजिट कौन सा है? BN। BN। BN
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस BC. BC. BC। चलो नेक्स्ट बताएगा सानिध्य। सानिध्य, हेलो सर। हाँ बताओ कॉस आर कितना होता है? इस डायग्राम में कॉस आर कितना आएगा? कॉस आर क्या होता है? Adjacent upon hypotenuse. यस, तो एडजेसेंट साइड कौन सी है आर की BCN में? NC। या इट इज NC। कॉन्फिडेंस से बोलो, गलत हो जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? और हाइपोटेनस BC. BC. BC। BC. हाँ, नाउ NC की वैल्यू कितनी है पता है क्या आपको? T। नहीं। T. पता है ना, ऊपर लिखा है ना, T है ना। हाँ सर ठीक। Yes sir। या BN की वैल्यू पता है क्या? नहीं सर। नहीं पता है तो इसको छोड़ दो। और T अपॉन BC, ठीक। Yes sir। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? गलत करती है। लो ने गड़बड़ कर दिया। हाँ सर। BC इधर ले लो, cos r इधर ले लो, क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू T by cos r। T बाय cos r। आ गया समझ में? यस। Yes sir. अब किसको नहीं समझ में आया? रेज योर हैंड। नहीं समझ में आया? रेज योर हैंड। सर रिपीट। ओके, ये ऐसे बच्चे चाहिए। नहीं समझ में आया फटाक से बोल दी। यहाँ पे ये बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, और कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक। BCN, इस ट्रायंगल में BCN में ये एंगल आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका कॉस कैसे आएगा? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट कौन सी है? ये BN, ठीक है, डिवाइडेड बाय BC, हाइपोटेनियस BC। हाइपोटेनस BC। हमने ये क्यों लिया? बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ CN। अपोजिट अगर वैल्यू। साइन लेते हैं तो साइन में BN की वैल्यू तो पता ही नहीं हमें, इसलिए कॉस ले लिया, ठीक है। यस सर। तो cos r विल बी इक्वल टू NC अपॉन BC। NC पता है हमें T, तो T अपॉन BC, एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ BC विल बी इक्वल टू T अपॉन cos r। क्लियर? सर जल्दी में गलत हो गया सर, सही Yes, सोच sir। रहा हाँ ये तो होता ही है, Yes sir. जल्दी का काम शैतान का। था। सॉल्व नहीं ना सर, मेंटली सॉल्व करा था तो उसी चक्कर में दिक्कत हो गया। हो जाता है, इट्स ओके, लो बट स्टेडी। यस सर। नाउ इफ BC इक्वल टू T बाय cos r, तो बिना कैलकुलेशन के मुझे बताओ कि CD की वैल्यू कितनी आएगी? सेम आएगी। टी Same बाय आएगी। कॉस आर आएगी। T by cos r। सेम आएगी टी क्योंकि बाय कॉस आर दिस से। इज नाउ इक्विलेटरल आपने दी खुद बताया है। इक्विलेटरल। हाँ क्योंकि ये वो दोनों भी और साइड सर वो से। भी नहीं तो सर आर है ना सर, सेम है सर, R रिफ्रैक्टेड रे सेम है, है इसलिए। T भी इसलिए सेम है, तो इसलिए वो CD की वैल्यू आ जाएगी T बाय cos r। तो पाथ 1 कितना हो जाएगा? पाथ 1 2T by cos r। विल बी इक्वल टू BC प्लस CD। इतना ही था हमारा, सॉरी यस सर। ये BE हो गया ये, BC प्लस CD that is equal to T by cos r plus T by cos r that is equal to 2T by cos r। यहाँ तक लिख लिया? यस सर। यस सर। तो नाम दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। अब लेते हैं हम कुछ दूसरी डायग्राम, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पे ये BN की वैल्यू, BM, ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 क्या है? BM है। तो BM की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर देखते हैं। This is B, this is M, and this is गया था D।
BDM, ठीक है। सर वो जो आर है सर वो रिफ्रैक्टेड एंगल है ना सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो है नहीं सर वो? कौन सा? हाँ, एंगल ऑफ सर जो आपने, रिफ्रैक्शन। अच्छा सॉरी, ये गलत कर सर दिया तो, मैंने। सर गलत हो गया सर, वो सर तो एंगल ऑफ आएगा ना? रिफ्लेक्शन कैसे होगा? एक मिनट, एक मिनट, ये आर नहीं चाहिए, ये आई चाहिए। हाँ यहाँ पे आई होगा बस, इसीलिए कंफ्यूज था। हाँ, जल्दी जल्दी में मैंने आर लिख दिया। नाउ दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। और फिर ये इधर तो है ही, ऐसे जाके ऐसे आ गया ये पता ही है हमें। ये क्या है? सी, ये क्या है? एन। यस सर। अब हमें BM की वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ ये पता है T, ठीक है। समझ में आ रहा है? नाउ इफ यू टेक द साइन I हियर, कितना आएगा? सर bm अपॉन 2t cos t cos t by cos r। नहीं, T बाय cos r कहाँ से आएगा? सर BC CD और आपने बताया था BD इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना सर? ये इक्विलैटरल है, ये दोनों साइड सेम है, और सर इसकी BM वैल्यू जो upon है MD, ये है। सर आपने बोला था ये BD भी सर MD इक्विलैटरल MD ट्रायंगल MD होगा, आपने कहा BCD इक्विलैटरल, वेरी करेक्ट। BCD MD, आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया ना सर इसलिए। MD, BM अपॉन MD, पहले साइन है बताओ yes मुझे। सर sir, BM अपॉन MD कहाँ से साइन आई हो गया सर? BM अपॉन MD कैसे होगा? सर opposite BM upon अपॉन BD होगा, हाँ, T BD, BM अपॉन BD होगा। BD होगा, BD होगा। BD होगा। सर हम BD को T by cos r नहीं लिख सकते? नहीं, BD को कैसे सर लिखेंगे? सर CD आपने है, बोला था ना सर CD कि को T BCD, बाय cos r है। सर आपने बोला ना CD, BCD इक्विलैटरल है। हाँ, तो ये T बाय cos r ये हो गया आपका, और ये भी T बाय सर cos r फिर हो गया। BD भी तो फिर T by cos r हो गया। कैसे होगा? नहीं, इक्विलैटरल नहीं है ना, ये दो ही साइड ही इक्विलैटरल नहीं, क्या तीनों साइड थोड़ी ना सेम है, आइसोसेलेस दो ही साइड ट्रायंगल से। है ये। आइसोस्केलस है आइसोसेलेस है फिर ये फर्क पड़ता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का। मुझे क्या पता, समद्विभुजक त्रिकोण बोलते हैं इसको, समभुज नहीं, समद्विभुज, दो साइड सेम है, अच्छा सर। ठीक है। हाँ सर, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आइसोसेलेस सर। सर नाउ, हाँ, सर हमने वो क्या बोलते हैं पहले नीचे जो वैल्यू निकाली सर, बीएन निकाला था ना अपन ने। नहीं तो निकाला था। बीएन निकाला था ना, हाँ, तो BN निकाला था। टी बाय साइन आर, तो फिर एनडी भी इक्वल हो जाएगा ना सर, वो मिड पॉइंट हुआ उसका, तो सीएन बिल्कुल मिड सही, पॉइंट। बिल्कुल सही आस्था, योर लॉजिक इज वेरी करेक्ट, दिस टू आर सेम। तो सर वो BN भी, इक्वल टू ND, वेरी तो करेक्ट, BN उसकी इक्वल टू वैल्यू ND। टी बाय साइन आर आ जाएगी ना सर, मतलब टू हाँ, टी बाय लेकिन साइन, लेकिन हमें नहीं, T बाय साइन आर कैसे आएगी? टू टी बाय साइन आर प्लस नहीं करेंगे नहीं सर नहीं नहीं, बीएन प्लस बीडी साइन के तो। कैसे, साइन कैसे, एक मिनट, धीरे धीरे, डोंट गो फास्ट। साइन आर की वैल्यू लिखो इसमें, किसी भी एक ट्रायंगल में, ये ले लो सपोज, सॉरी, आर आर आर, साइन आर की वैल्यू क्या आएगी? BN अपॉन BC। BN अपॉन BC। BC। अब BC आएगा T बाय cos r, ये और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन उससे भी आसान चीज है अपने पास, डिलीट नहीं हो रहा, उससे भी आसान चीज है हमारे पास। इफ आई टेक tan r, व्हाट विल बी tan r? BM साइन आर अपॉन कॉस आर। सर वो लेकिन इसमें ट्रायंगल में tan r क्या BN होता है? upon फ्रंट साइड अपॉन और अपोजिट सर साइड BN अपॉन, अपॉन CT, BN अपॉन CT। BM upon MD, अपन एडजेसेंट। हाँ, BM नहीं, BN, BN BN upon upon इसे NC, NC अपोजिट, BN अपॉन CN, NC और इसके एडजेसेंट NC NC, NCCN जो भी सर। ठीक है। तो BN हमें पता नहीं है, NC पता है, NC पता है, यस सर, T tan yes R, sir, हाँ tan कितना है? T, T, टी T, 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 BN इक्वल टू अंडर BN इक्वल टू T tan R। T tan R। लिखते वक्त थोड़ा सा संभाल के लिखना, T T AN नहीं लिखना है, T और tan में डिफरेंस रखना है, T tan R, ठीक है। Now if BN equal to T tan R,
ND will be equal to तो 2t tan r हो जाएगा, 2t tan r ND total Ten R sir. t tan r T10 and therefore ये पूरा BD 2t tan r 2t tan r. BD कितना हो 2t जाएगा? 10 r 2T 2T 10 R. Now I put here as this is BM upon 2T tan R. Okay, and therefore BM की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? BM will be equal to 2t sin I tan r 2t sin tan I tan R r into sin I. ठीक है, इसको सॉल्व करो। अभी कैसे सॉल्व करोगे? साइन सर I और साइन R के बीच में कोई रिलेशन पता है? सर mu1 sin I equal to mu2 sin r by cos. साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू mu म्यू। तो वी नो सर म्यू लेकिन यहाँ तो इक्वल दोनों टू उसमें है साइन सर, I अपॉन साइन R। समझ में सर आ लेकिन रहा यहाँ है? तो मैं दोनों बहुत सारा इधर मल्टीप्लिकेशन उधर में लिख सर, रहा हूँ। सर वो कैसे आया sin I upon sin r mu मेरे को नहीं ये समझा तो वो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, हाँ स्नेल्स फॉर्मूला स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ। ओके सर। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ये अगर आपका ऐसे, दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1, and if the light is incident here, it goes to medium 2. This is angle of incidence, this is angle of refraction, and then in this case sin I upon sin R will be equal to mu. ठीक है, सो यहां से हम sin I की वैल्यू निकाल सकते हैं। sin I इक्वल टू, हाँ, sin I इक्वल टू mu म्यू into अपॉन sin sin R। r Mean into sin. पक्का? mu into sin r हाँ, बस ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये सॉल्व करो, निकालो कितना आता है। जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। टेक टाइम टू राइट। छोटा कर दो इसको, ये देखो। तो BM की वैल्यू क्या आई? सर वो किसी की आइडेंटिटी है क्या, किसी ट्रिग्नोमेट्री की 2t tan थीटा इनटू ऐसे कुछ आता क्या? नहीं नहीं नहीं, tan के क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है ना। Sir, 2t sin square I upon cos I. सर 2t कर रहे हो गड़बड़ कैसे 2t कर रहे हो? ये mu देखो, sin square r upon cos r. BM इक्वल टू Was Two. same sir. 2 mu T t tan R। Mu. tan R क्या होता है? sin r Sin r upon upon cos cos r. R अपॉन कॉस। Cos. ठीक है, और इनटू साइन आई। साइन आई क्या है यहाँ पे? Mu म्यू sin इनटू r. sin r साइन आर। साइन आर अपॉन कॉस आर, tan R इक्वल टू साइन आर अपॉन। तो ये क्या हो जाएगा? 2T 2 म्यू t T। mu sin square r upon cos r. वेरी करेक्ट, साइन स्क्वायर R अपॉन कॉस R। ठीक है, ये हो गया आपका BM। इससे पहले आपने BC प्लस CD निकाला था, वो कितना आया था? 2t cos r 2t upon cos r 2T बाय अपॉन कॉस R। ठीक है, 2T अपॉन कॉस R। ठीक है, नाउ सी वेयर इज दिस BC प्लस CD? ये डायग्राम में देखो, BC प्लस CD किस में है? मीडियम में है। Medium में. हाँ, अभी ये कंसेप्ट समझ लो। मान लो कि कोई एक एथलीट है, वो सैंड पे, रेत पे रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, और उसका स्पीड है सपोज 10 किलोमीटर पर आवर। जब वो रनिंग ट्रैक पे दौड़ेगा तो उसका स्पीड उतना ही रहेगा, बढ़ेगा या कम होगा?
बढ़ेगा 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 सर। बढ़ेगा पक्का? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। यस सर क्योंकि जब वो सैंड में प्रैक्टिस कर रहा था तो उसका क्या हो रहा था? एक्सर्शन ज्यादा हो रहा था, स्पीड कम मिल रहा था, यस सर क्योंकि उसको रेजिस्टेंस था। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर यस अब सर। अगर हम यहां से BC प्लस CD की बात करते हैं तो BC प्लस CD इज ट्रेवलिंग इन मीडियम, नॉट इन एयर। मान लो BC प्लस CD इतना ही डिस्टेंस अगर लाइट ट्रेवल करता एयर में, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता या कम करता, या उतना ही करता? ज्यादा करता है। ज्यादा। ज्यादा करता, ज्यादा ऑब्वियसली, क्योंकि करते। अभी इसमें इसकी वेलोसिटी कम हो गई। जैसे रनिंग रेस वाला जो मैंने एग्जांपल दिया वैसे ये है। कितना ज्यादा करता? कितना ज्यादा करता? This is in air. In medium of refractive index mu, the optical path मतलब अगर लाइट एयर में होता तो इक्वल टू म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल मतलब सिंपली कंसीडर मत करो कि मीडियम है। सो ज्योमेट्रिकल पाथ इज दिस, यहां से यहां तक, सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज अ ज्योमेट्रिकल पाथ। ठीक है, या आप इसको थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हो, 500 मीटर। ठीक है, नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ? मान लो कि 500 मीटर का ही डिस्टेंस है, बट इट इज अ स्विमिंग पूल, या पानी भरा है उसमें, तो उतने टाइम में आप पहुंचेंगे क्या? सेम टाइम में नहीं। पहुंचेंगे? नो। नो सर। लो। नो, नो सर। यू विल टेक मोर टाइम। सपोज ये वाटर में अगर आप 5 मिनट्स में पहुंचते, तो वाटर निकाल दिया तो कितनी मिनट में पहुंचोगे? लेस देन 5 सर। लेस देन 5 मिनट, क्योंकि आपका स्पीड बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ। एयर में जो आ रहा है वो वाटर के हिसाब से आपको ज्यादा पाथ देगा। अगर आपको कहा जाए कि 5 मिनट ही आपको वॉक करना है एयर में, तो आप 500 मीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ। लाइट के लिए, लाइट अगर सपोज वाटर से जा रहा है उसको 5 मिनट लग रहे हैं, अगर वो एयर से जाएगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 ही मिनट में, सेम टाइम more distance will be traveled. So mu into geometrical path. Now we know this geometrical path BC plus CD in air, and therefore optical path, say 1 will be equal to mu into ये geometrical path 2t by cos r. समझ में आया? यस सर। Now this is optical path 1, this is another optical path 2. So part difference क्या आएगा? You take anything, mu, पाथ माइनस प्लस। ये पहला वाला जो है ये पहले ले सकते हैं, ये भी पहले ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले ले लेते हैं, 2t अपॉन cos r माइनस 2 म्यू टी 2 म्यू t अपन कॉस साइन स्क्वायर r अपॉन cos r। करो, इसको सॉल्व करो, सर कर लिया कितना आता है सर। बताओ। सर इसका आंसर आएगा 2 म्यू टी cos r। गुड, बाकी लोगों का आया? सर अभी तो निकाल रहे। करो करो करो। देखो, जब भी कंपटीशन होगा ना तो somebody will take the lead, somebody will take time, don't worry about it। आपका आंसर आना चाहिए, किसका कितने टाइम में आया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्यूरेट आया कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने सीईटी में भी देखा होगा। सर आ गया सर आंसर। ठीक है, आ गया, ठीक है। now this is cos r is common, so I just take cos r here, and this is 2 mu t minus 2 mu t कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस साइन sin square। साइन स्क्वायर आर। 1 माइनस साइन स्क्वायर आर।
हाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर cos कितना square होता r. है? cos cos स्क्वायर आर, और ऊपर एक cos स्क्वायर है, ये नीचे cos है, तो एक cos कैंसिल हो Cancel. जाएगा, सो दिस इज 2 Mu म्यू t cos cos r. r. ठीक है? yes sir 2 mu t cos r. Now safely we can say if it is n lambda, then it is bright. If it is not, say n plus half. So this is odd multiple of lambda. Then it is dark. But no. But no. Why? वापस चलते हैं डायग्राम की तरफ। और ये भी पॉइंट आपने सीखा है 12th में, ये भी पॉइंट सीखा है। Now, how many reflections you can see here in this diagram? Sir 2. कितने रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं? हाँ, Sir 2 बार रिफ्लेक्ट हो रही है सर लाइट। 2 बार हो रही है, ठीक है। पहली बार कहाँ हुई? B to B C, point C पे। to D. कौन से सर C पहले पॉइंट तो पे सर हुई? B पे हुई फिर दूसरी बार C, C B पे point हुई पे। हाँ, पहले हुई पॉइंट बी पे, दूसरी बार हुई पॉइंट C सी पे। पे। C। इन दोनों में कोई डिफरेंस है रिफ्लेक्शन में? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस सर मतलब एक का कम हो गया सर। ठीक है, और एंगल को सर छोड़िए। एक में मतलब मीडियम मतलब सर उसका म्यू ज्यादा है सर तो लाइट की स्पीड कम हो गई है सर। ओके, और बाद में ये मत बोलना कि सर ने बोलने का चांस ही नहीं दिया। हमें तो चांस ही नहीं मिलता, ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है, हमें तो चांस ही नहीं मिलता। हम चांस दे रहे हैं तो आप ले नहीं रहे हैं। बोलो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत हो जाएगा। श्वेता, सर रिफ्रैक्शन हो रहा। रिफ्लेक्शन की बात ही नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन। कितने रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, और ये तो हमने पता कर लिया कि बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक। बी पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो, और सी पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो, क्या वो सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। Different है। डिफरेंट क्यों है? Different है। सर चलो सेम है। एक एक करके पूछता हूं मैं। हाँ श्वेता, सर सेम सर यू टेल मी फर्स्ट। सर फर्स्ट इस पे जो इंसिडेंट हो रहा है वो मतलब डायरेक्ट सोर्स से हो रहा है, लेकिन सी पे जो हो रहा है वो मतलब रिफ्लेक्शन होके फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन होके रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ ठीक है। 49 निशा पाटिल। ये मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, कौन कौन रिप्लाई नहीं दे रहा है उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी आज। निशांत पाटिल ऑब्सेंट। प्रथमेश वर्गने 54। आवाज नहीं आ रही प्रथमेश। हेलो सर। थोड़ा जोर से बोलो, बताओ कि बी और सी पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। साक्षांत गडकरी, रोल नंबर 60, absent. सौरभ सिद्ध 64. Am I audible? yes sir Yes, sir. यस सर। ये absent चल रहे हैं सब। शाश्वत Sir, they are in different medium. That's why they are different. वेरी करेक्ट। तो ये बताओ कि अगर मान लो कि बी पॉइंट लेते हैं हम, एयर से मीडियम में जा रही है वेव, तो क्या फर्क पड़ेगा? और सी पॉइंट पे मीडियम से मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो क्या फर्क पड़ेगा? सर एक बार क्वेश्चन Sir, वो फिर से parallel रिपीट नहीं कीजिए। सर रहेगी। स्पीड एक मिनट बी पॉइंट पे ये एयर से मीडियम की तरफ जा रही थी, वहां से रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन सी पॉइंट पे ये मीडियम से एयर की तरफ जा रही थी और उसमें से रिफ्लेक्ट हो गई। सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम डिफरेंट मीडियम।
In first case, at point B, it is reflecting from the denser medium, whereas at point C, it is reflecting from रेयर rarer medium. मीडियम अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? सार्थक वेलोसिटी सार्थक 63. सर स्पीड में डिफरेंस आएगा सर वेलोसिटी में। वो तो छोड़ दो, और क्या डिफरेंस आएगा? वो तो आएगा ही, ऑब्वियस है। और सर ज्यादा बेंड होगा। वो तो सिंपल है कि स्पीड डिफरेंस होगा तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। और गौरी राउत 41, अलर्ट रहो। गौरी इज एब्सेंट। स्वयं 32, गौरी का माइक नहीं चल रहा है। नहीं, स्वयं भी नहीं है, सिर्फ ज्वाइन किया है। सानिध्य 24। हेलो सर। या कहाँ चले गए? सर हेलो बोल दिया वो सिर्फ। हाँ सर हाँ हरिता। सर स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन ऑप्टिकल रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन रेयर मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन डेंसर मीडियम। वो समझ में आ गया। फेज का कोई कंसेप्ट है क्या इसमें? जब वेव किसी डेंसर सर मीडियम सेम से फेज में है सर, ये तो सर आप ही ने बताया था कल सर। सर हाँ सर रिफ्रैक्शन में सर वेवलेंथ सेम नहीं रहती सर, वो चेंज हो जाती। और अगर वेवलेंथ लाइट चेंज हो गई तो फिर मीडियम में भी चेंज हो जाएंगी। अरे ऐसे कैसे? रिफ्लेक्शन में लाइट की वेवलेंथ कैसे चेंज होगी? रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन सर की नहीं। रिफ्रैक्शन। नहीं रिफ्लेक्शन की बात ही नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन। ये सर स्टोक्स फ्रीक्वेंसी थ्योरम चेंज हो जाएगी लाइट की। नहीं, सर ये लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम कभी भी फेज में है चेंज ना नहीं सर, होती है, इसलिए याद रखना। सर सेम फेज है सर इसका। नहीं, ये देखो, ये एक मीडियम है विच इज अ डेंसर मीडियम। यहाँ पे एक वेव आ गई, ठीक है, क्रेस्ट आ गया, और ये डेंसर मीडियम है। अब लेफ्ट हैंड साइड का ये रेयर है, और इस पर से ये रिफ्लेक्ट हो रही है। इन दोनों में क्या अंतर रहता है? नहीं, चलो लिख लो, सर वो फर्स्ट में वापस वैसे ही आ जाएगा। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, सर्च करो और बताओ मुझे कल। सर क्या करना है, फिर से रिपीट कर दीजिए सर। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा इसका? ये वेव आ रही है लेफ्ट टू राइट, हाँ सर। ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्ट होगी किस डायरेक्शन में फर्स्ट में जाएगी? उसका सर जो डेंस कर्व होगी है तो वो सर चेंज नॉर्मल हो की तरफ जाएगा। दब जाएगी सर। सर डेंस होगी तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और रेयर में होगी तो रिफ्लेक्ट होके दूर चली जाएगी सर डेंसर से। नहीं 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 यस सर नहीं 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 सर नहीं, उसका कर्व चेंज होगा, सर तो उसका जो कैसे फेज चेंज है वो होगा? डेंसर में। और सर चेंज क्योंकि की बात कौन कर रहा है? एनर्जी ट्रांसफर उसके इसमें होंगी ना डेंसर में, फिर से जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो। You are quite close, Rugved, but not exactly. You are quite close. सर वो चलो लिख, एनर्जी मतलब डेंसर में उसकी एनर्जी फिर से रिफ्लेक्ट होके उसका फेस चेंज हो जाएगा। कितने से? आई थिंक 180। यस, ये आप लोगों ने देखा नहीं कि ये इस टाइप से हो हाँ जाता देखा है? है सर साउंड में। सर ये साउंड इधर में आ रहा देखा है, था ये सर, देखो। जब जो एंटी नोड और नोड हाँ, का सिस्टम होता है क्लोज एंड और से। फिर ये कैसे होगा? ये भी ऐसे हो जाएगा? नहीं सर रेयरर में नहीं होगा, सर वो रेयर में तो वो एब्जॉर्ब हो आगे जाएगा। निकल मोस्टली जाएगा ना। पॉसिबल है कि वो सर एब्जॉर्ब वेवलेंथ हो, इंक्रीज होगी क्या या सर फिर रेयर वैसे ही में रहे। उसकी? नहीं, वेवलेंथ चेंज नहीं होती। अगर वो सेम मीडियम में है तो वेवलेंथ कभी चेंज नहीं होगी। वेवलेंथ विल रिमेन सेम, द फेज ऑल्सो रिमेन सेम। अगर क्रस्ट फॉल हो रहा है तो क्रस्ट ही वापस जाएगा, और अगर
डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो देन दी फेस चेंजेस बाय 180 डिग्री, इसलिए तो स्टेशनरी वेव बनाते हैं ना। स्टेशनरी वेव क्यों बनती है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आपने ऐसे ऐसे, चलो आपने तो एक्सपेरिमेंट किए कि नहीं मुझे पता नहीं। सोनोमीटर का नाम सुना है? यस सर। हाँ, यस सर। तो यहाँ पे ऐसे वेव बनती है, ये जाने वाली वेव, ये आने वाली वेव, ठीक है, इसलिए तो स्टेशनरी वेव बनती है ना। तो क्रस्ट गया, ट्रफ वापस आया, ट्रफ जाएगा तो क्रस्ट वापस आएगा, दैट इज व्हाट द स्टेशनरी वेव इज। रिफ्लेक्शन हो जाता है पूरा, एंड दैट हैपेंस जस्ट बिकॉज दिस इज अ डेंसर मीडियम हियर। यहाँ पे जो हमने ये टेंशन लगा दिया ना, इसकी वजह से, ठीक है। फ्लूट, फ्लूट में नहीं होता ऐसा, फ्लूट इज ओपन एट वन एंड। सर ओपन एट, ये क्लोज एंड में होता है सर ऐसा, जो हाँ, फेज एकदम चेंज हो जाता है। जहाँ पे क्लोज होता है उसमें, वो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव का एक्सपेरिमेंट किया होगा, पानी की लेवल नीचे ऊपर करो, यस सर। ठीक है। नाउ दिस प्रॉपर्टी विल यूज हियर। नाउ कंसीडर द पॉइंट बी वेयर इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द, इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द, कौन सा मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है? रेयर टू डेंसर। डेंसर हाँ, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ डेंसर यहाँ टू अगर रेयर क्रस्ट आया तो यहाँ ट्रफ आ जाएगा, ठीक है। But Yes. here, Yes, sir. if it is Yes. something like this, if it is a crust, then it will reflect as crust because it is reflecting from the rarer medium. रेयर मीडियम तो यहाँ पे एक फेज डिफरेंस आ गया 180 डिग्री का, यहाँ पे नहीं है, तो ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा। Now the phase difference of 180 degree corresponds to path difference of what? फेज डिफरेंस अगर 180 डिग्री का है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, हमने ये पढ़ा, 2 पाई कॉरेस्पॉन्ड्स टू लैम्बडा। सर लैम्डा बाय 2 हो जाना चाहिए। तो हाँ, पाई से लैम्बडा बाय 2। नाउ हियर करेक्टेड पाथ डिफरेंस विल बी, करेक्टेड path difference will be equal to this value 2 mu t cos r minus lambda by 2. Now why not plus lambda by 2, we'll see. And then now this condition are n lambda bright and n plus half lambda as dark. इसको सॉल्व कर लो, माइनस लैम्बडा बाय 2 को राइट साइड में लेके जाओ, क्या आएगा? सर यही वाईडीएससी में भी सर यही हुआ था ना सर, वाईडीएससी में भी सर यही हुआ था ना, करेक्टेड पाथ डिफरेंस का, यंग्स डबल स्लिट में। नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं आता, उसमें नहीं आता, क्योंकि उसमें एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं और एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। ये जब रिफ्लेक्ट होती है वेव, यस सर, तब ये प्रॉब्लम आता है। रिफ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, रिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं। तो तुम्हारे टीचर ने मतलब ये पढ़ाया था तभी हल्का हल्का रिमेम्बर हो रहा था भाई। हाँ, तो ये आपका जो एग्जांपल था ना, वो ऐसा था कि ये ग्लास प्लेट है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और ये नीचे जाकर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपको 180 डिग्री का पाथ फेज डिफरेंस कंसीडर करना पड़ रहा था, ठीक है, ये प्रॉब्लम था आपका। चलो इसको लैम्बडा बाय 2 को राइट साइड में ले लो, सो व्हाट वी गेट इज 2 म्यू टी इक्वल टू, ये n प्लस हाफ लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करने के हिसाब से अगर n माइनस हाफ कर देता हूं, वी कैन टेक ऑड नंबर एनीथिंग, या स्टार्ट होगा n इक्वल टू 1 1 2 3, या होगा n इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। So this starts with n equal to 1 2 3, and now 2 mu t cos r equal to now n minus half plus this half lambda, so this becomes n lambda. Now this is bright and this is dark, so the condition for dark is n lambda, which was condition for the bright in Young's double slit experiment. So Young's double slit experiment में जो conditions आई थी, उसके exact opposite condition यहाँ पे आ गई,
थिन फिल्म रिफ्लेक्शन में। समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी आपको क्या करना है वो बताता हूं मैं, ठीक है?